Hello everyone. I welcome you all to the Aptiplus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. And so in today's News in Focus video session, we will talk about the PM Modi's gift to fishing farmers, the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahayojana. And we will also talk about the Indian Tan turtle in details and also talk about the Gomti River. So let's begin the News in Focus session today. So the first topic is Indian government boosting the fishery sector with the new schemes Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahayojana. It provides over 6,000 crore for micro and small businesses to boost the sector. This topic is important for prelims examination, mains examination and other state PCS services. Importance for this topic exam relates to both GS paper 2 and GS paper 3 and also for prelims. The topics are government policies and intervention, direct and indirect farm subsidies, economies of animal rearing. So what is this news all about? So let's talk about the context first. Recently, the Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahayojana and has granted an extension to the Fishery Infrastructure Development Fund for an additional 3 years until 2025 and 26. So Cabinet approved this schemes. It is a central sector sub-scheme under the Pradhan Mantri Matsya Sampada for the fishery sector, micro and small enterprises specifically. It envisages an investment of over 6,000 crore in the next 4 years. And the broad aim, it caters to the infrastructure need of the fishery sector, ensuring sustained development and the growth. So let's understand more about this scheme in detail. So we already talked about this. It is a central sector service scheme for formalization of the fisheries sector and to support the fisheries, micro and small enterprises. Investment is 6,000 crore for the next 4 years, which is 2023-24 fiscal year to fiscal year 2026 and 27 in all the states and union territory. Just remember this fact. It is not specific or particular to one or two state or union territory. It is for all states and union territories. Let's talk about the expenditure. So overall, we talked about the project cost is 6,000, estimated cost is 6,000 crore, where 50%, that is 3,000 crore, public finance includes from funds from World Bank and AFD external financing. And the rest 50%, that is the rest 3,000 crore would be the anticipated investment from the beneficiary or private sector leverage. So it will be implemented for 4 years. We already talked about that. Let's talk about the objectives in brief. So the main aim of this scheme is to gradual formalization of the unorganized fishery sector through self-registration of fishers, fish farmers and supportive workers under a national fisheries sector digital platform. So they have to register on this platform and the digital identity would be issued and the digital identification of the fishing workers or fish farmers would be created here. It would facilitate access to the institutional financing for fisheries sector, micro and small enterprises. The other objectives are providing a one-time investment or one-time incentive to the beneficiaries for purchasing the aquaculture insurance. So this incentive for aquaculture insurance. So incentivizing, there is one more incentive given to the fish farmers, that is based on the performance. So it will incentivize the fishery, micro and small enterprises through performance grant. Adoption and expansion of fish and fishery product safety and quality assurance system are also envisaged from this scheme, and it will also create and maintain jobs in this sector. So their futures would be protected. Let's talk about the potential impact schemes talk about. One is to create a national fisheries digital platform, and it will provide 40 lakh small and micro enterprises work-based digital identities, as we already talked about, but just remember the figure 40 lakh small and micro enterprises. Second, we also discussed about the gradual formalization of fisheries sector. Let's talk about the numbers. So this initiative will support around 6.4 lakh micro enterprises and the 5,500 fisheries cooperative, so thus providing them the access to the institutional credit. And this gradual shift from the conventional subsidies to the performance-based grants. So grants would be provided on the basis of performance here. And this program also focuses on improving the value chain efficiency, which ensures the safe quality fish by supporting targeted micro and small enterprises. The number is 55,000 targeted micro and small enterprises.
So it will also promote the environmental and sustainability initiatives. This scheme will also facilitate the ease of doing business and the transparency. This scheme, the potential impact of this scheme also include addressing the issue of aquaculture crop losses due to the disease, which is through insurance coverage for aquaculture, in turn which will strengthen the production and the productivity. It will also enhance the export competitiveness through value addition, value realization and value creation. There will be increase in income due to the enhanced profit margins due to the value chain efficiency. And again, as said, as stated, as implied, that it will improve the quality of fish and fishery products in the domestic market. So hence it will strengthen and deepen the domestic markets, and thus facilitating the growth of businesses, creation of new jobs and creation of business opportunity. It will be focused on the women empowerment also through creation of jobs and safe working places. Let's again talk about the numbers. It is expected to create 1.7 lakh new jobs with a special emphasis on employing 75,000 women. हमने already women empowerment की बात की थी कि थोड़ा focus women empowerment पे रहेगा. It also aims to generate 5.4 lakh continued employment opportunity in the this micro and small enterprises value chain. So these are the numbers. So who would be the intended beneficiaries? One is fisher, fish farmers, fish worker, vendors and other stakeholder in this fishery value chain, in this fishery sector. It will also support, as we already said again and again, micro and small enterprises. Just focus this micro and small enterprises, which includes proprietary firms, partnership firms, cooperative, federation, startups, fish FPO, that is farmer producer organizations, village level organizations like self-help groups and more engaged in this sector and aquaculture. And it will also include any other beneficiary that may be included by the Department of Fishery as targeted beneficiary. So what would be the implementation strategy? The implementation strategy has 4 components: 1, 2, 3 and 4. For component 1, it is 2 part, 1A and 1B. In component 1A, focus would be the formalization of fishery sector. जो हमने बात की थी NFDP की, which is to be established to formalize the unorganized fishery sector by creating a national registry of stakeholder. इसके फंक्शन क्या रहेंगे? NFDP के disbursement of financial incentives, training, financial literacy improvement, project preparation assistance and strengthening of fisheries cooperative societies. Let's come to the component 1B. It talks about the facilitating adoption of aquaculture insurance. So it will establish insurance product for aquaculture, which will cover at least 1 lakh hectare. So the maximum incentive per farmer is 1 lakh rupee for the farm size of 4 hectare. That means maximum 25,000 per hectare is given, and or the 40% of the cost of insurance premium, which is lower. Which one of these is lower? For aquaculture insurance purchased for 1 crop only. So these incentives, remember this, ये सारे जो incentives हैं वो 1 crop cycle के लिए है. जैसे हमने कहा 1 time assistance है ये, जो वो 1 crop cycle के लिए है. इसमें कुछ प्रोविजंस स्पेसिफिकली SCs, ST, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और विमेन बेनिफिशरीज के लिए भी हैं. दे विल रिसीव एन एडिशनल 10% इंसेंटिव. नाउ लेट्स जंप टू द कंपोनेंट 2, वैल्यू चेन इंप्रूवमेंट. सो इट विल इंप्रूव द फिशरी सेक्टर्स वैल्यू चेन एफिशिएंसीज. तो कैसे इंप्रूव करना है वैल्यू चेन को? थ्रू द प्रोविजन ऑफ परफॉर्मेंस ग्रांट. हमने बात की, तो हम थोड़ा और स्पेसिफिक यहाँ पे बात करेंगे. स्केल एंड क्राइटेरिया परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए क्या है? पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस. उसमें 2 कैटेगरी है. वन इज जनरल कैटेगरी एंड द सेकंड इज SC ST वुमेन ओन्ड. तो जनरल कैटेगरी के लिए जो ग्रांट की कैप है, लिमिट है, वो है 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और 35 लाख, विच एवर इज लोअर. दूसरा ST SC विमेन के लिए, उनके लिए ग्रांट थोड़ी सी ज़्यादा है, 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट या 45 लैक्स. देर आर ऑल्सो विलेज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन, जैसे हमने बात की, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर कोऑपरेटिव्स. उनके लिए ग्रांट शुड नॉट एक्सीड 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे एब्सोल्यूट लिमिट में इट्स अराउंड 2 crore, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दिस. Right? So this is the value chain improvement through performance grant. Let's come to the component 3. It is about the adoption and expansion of fish and fishery product safety and quality assurance system. तो यहाँ पे प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में बात की जाएगी. One is incentivizing fishery enterprises for safety and quality. It will also foster the market expansion, job creation, particularly for women. So this will obviously lead to the expansion of domestic market, जहाँ पे
सेफ फिश और फिशरी प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की इंक्रीज सप्लाई होगी। यहाँ पे ग्रांट का भी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ग्रांट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या दिए गए हैं, जो हमने पहले वैल्यू चेन एफिशिएंसी में बात करी थी सिमिलर हैं, जो कि जनरल के लिए है 25% और 35 लाख, और SC ST एंड वीमेन के लिए है 35% और 45 लाख। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए यहाँ पे अलग से है 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹75 lakhs। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए क्या है 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹75 lakhs। और SC ST विमेन के लिए क्या है 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹1 crore, दैट इज 100 lakhs। विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन के और फेडरेशन के लिए ये लिमिट क्या रहेगी, कैपिंग लिमिट क्या रहेगी, दैट इज 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और 200 lakh। Right, so we have covered 3 components out of 4. Let's move to the 4th component. The 4th component is simple. It's about project management, monitoring, and reporting. So this scheme envisages establishment of project management units, and the purpose is obvious and self-explanatory. That is for managing, implementing, monitoring, and evaluating the project activities. So let's get a brief about the fisheries sector in India. India's total fish output stood at 174 lakh tons in 2022-23. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और ये तकरीबन टोटल ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में 8% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, अगर हम पिछले 10 ईयर्स की बात करें, फ्रॉम 2013 टू 2023 एंड 24, fish production has increased by around 80 lakh tons, which is equivalent to increase in last 43 years, that is 1971 to 2014। यानी कि 1971 से लेके 2014 तक जितना इंक्रीज हुआ है उससे लगभग उतना इंक्रीज लास्ट 10 ईयर्स में हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल एक्वाकल्चर एक्सपीरियंस। कोस्टल एक्वाकल्चर ने भी रोबस्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर एग्जांपल, श्रिम्प का प्रोडक्शन 270% तक बढ़ गया है, फ्रॉम 3.22 लाख टन्स टू 11.84 लाख टन्स। और एक्सपोर्ट में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसमें ग्रोथ है अराउंड 123% की। करंटली इट इज़ 43,135 करोड़। ये फिगर्स बहुत एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर रख पाएँ, एक ब्रॉड ट्रेंड याद रख पाएँ, दैट विल बी ओके। एंड आई टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। So for about 63 lakhs fisher and fish farmers would be benefited from that. Now priority sector lending also has seen a dedicated allocation of more than 34,000 crore for this sector. Now coverage per fisherman under the group accident insurance scheme. तो एक ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है फिशरमैन के लिए। उसके लिए कवरेज कितना है, पहले 1 लाख रुपए था, अभी 5 गुना बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। और ये कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, अराउंड 268 lakh fishers, fish farmers. And along with that, the extension of the Kisan credit card. So the Kisan credit card to fisheries in 2019 led to the issuance of 1.8 lakh cards. Right. बट इतने सारे इनिशिएटिव्स एफर्ट्स के बाद भी कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे पास, बट चैलेंजेस भी हैं। देयर आर चैलेंजेस परसिस्टिंग इन दिस सेक्टर। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जस्ट गेट ए ब्रीफ आइडिया, विच इंक्लूड्स इनफॉर्मल नेचर ऑफ दिस सेक्टर, लैक ऑफ क्रॉप रिस्क मिटिगेशन, एब्सेंस ऑफ वर्क बेस्ड आइडेंटिटीज, जो सारी डील करी जाएंगी इस स्कीम्स में। देयर आर अदर चैलेंजेस लाइक पुअर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, सब ऑप्टिमल सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फिश सोल्ड बाय द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये सारी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पे किसान क्रेडिट के बारे में बात की। किसान क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उसका एम क्या था, to provide adequate and timely credit support from the banking sector under a single window। तो हैसल फ्री क्रेडिट सपोर्ट मिले किसानों को, इसका एक एम था, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो इट विल कैटर टू द दिस स्पेशल कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, स्पेशली फिश फार्मर्स, और इन जनरल फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड टाइमली एंड एडिक्वेटेड क्रेडिट टू द फार्मर्स टू मीट देयर प्रोडक्शन क्रेडिट नीड्स लाइक कल्टिवेशन एक्सपेंसेस। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इस पर देख लीजिए क्या कवरेज है इसमें, किस किस तरह के एक्सपेंस कवर करे गए हैं। देखिए, शुरू के 5 हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला लॉन्ग टर्म है, बाकी ऊपर वाले जो 5 हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, दैट इज योर रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। पहला है टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सेकंड है पोस्ट हार्वेस्ट जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं।
तीसरा टू प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, आपको मार्केटिंग करनी है। एंड फोर्थ इज कंजप्शन रिक्वायरमेंट है, फार्मर हाउस होल्ड की कुछ भी रिक्वायरमेंट आती हैं उसमें भी आप ये किसान क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज वर्किंग कैपिटल वुड बी प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स एंड एक्टिविटीज विच इज अलाइड टू द एग्रीकल्चर। तो जो 5 अभी मैंने बोले हैं दिस इज शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए, उस तरह की एक्टिविटीज के लिए आपको क्रेडिट चाहिए, वो भी कवर किया गया है, बट दिस वुड बी लॉन्ग टर्म। राइट, एलिजिबिलिटी क्या है इस किसान क्रेडिट कार्ड की? एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे हमने कहा कि वन स्टॉप क्रेडिट फॉर फार्मर है, पर किन किन को दिया जाएगा? इसमें 3 है जनरली दिए गए हैं आरबीआई की वेबसाइट पे। दैट इज ऑल फार्मर्स, इंडिविजुअल, जॉइंट बोरोवर्स हु आर ओनर और कल्टिवेटर्स। सेकेंड है टेनेंट फार्मर्स को भी कवर किया गया है, और शेयर क्रॉपर्स को भी कवर किया गया है। एंड थर्ड वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर विच इंक्लूड्स टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एटसेट्रा। इस तरह के एलिजिबिलिटी के कई बार स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ लेती है। फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं हम, जो 2020 प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट पे। अभी हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 5 थे और लॉन्ग टर्म 1 था। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज? If you look carefully about these, the given options or given statement, first is about working capital for maintenance of farm assets. ठीक है, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल की बात की गई थी, इट सीम्स राइट। दूसरा इसमें कहा गया है परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। ये बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म हमने बात की थी, राइट। तो पहला इट सीम्स राइट, सेकेंड स्टेटमेंट सीम्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट नहीं है, इट्स लॉन्ग टर्म। थर्ड है कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, क्लियर प्रोविजन दिया हुआ था, दिस सीम्स ऑल्सो राइट। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अगेन बड़ा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो सेकेंड एंड फिफ्थ है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आंसर जो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे 1, 3 एंड 4, राइट। सो योर ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन हियर। अच्छा, यहाँ पे एक की टर्म हम बार बार यूज करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, एक्वाकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, नीली क्रांति, या हम कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ये क्या है, अगर आप हमें कमेंट करके बताएं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हु आर अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो ये एप्टी प्लस अकेडमी का एक इनिशिएटिव है। ऑन 25th of the February, that means 25th of this month, Apti Plus Academy is organizing a mock prelims test, and this test will be free of cost, no charge at all. You just need to register for the mock test. Thousands of कैंडिडेट्स के साथ अपने आप को compete और compare करने के लिए it is I think a good opportunity, and early analysis of weak and strong areas would go a long way in your UPSC journey. अच्छा, इसमें अवार्ड्स के लिए प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप रैंकर्स हैं जो 1 to 3 रैंकर्स हैं, और फिर 4th से लेकर 10th तक रैंकर्स हैं, यानी टॉप परफॉर्मर्स वुड बी प्रोवाइडेड अवार्ड्स एंड बेनिफिट्स सीन हियर। पहले 3 रैंकर के लिए क्या है, इस टेस्ट सीरीज के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है फॉर 49 मॉक टेस्ट्स, और जो उसके बाद के नेक्स्ट टॉपर्स हैं, नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस हैं होंगी इस मॉक टेस्ट में, उसके लिए 10 मॉक टेस्ट के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन, right? So you can register by clicking the link of registration given in the description of the video, or you can scan the QR code mentioned here. I think you should not miss this opportunity. Having said that, एक निश्चय इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट है ये उनके लिए, अगेन जो अपीयर कर रहे हैं इस बार, स्पेसिफिकली उनके लिए जो प्रीलिम्स 2024 में अपीयर कर रहे हैं। अगेन एप्टी प्लस अकेडमी की निश्चय टेस्ट सीरीज है फॉर प्रीलिम्स 2024 के लिए, एंड दिस कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज इज डिजाइंड बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे रियलिस्टिक एग्जाम सिमुलेशन है विच विल मिमिक द एक्चुअल प्रीलिम एक्सपीरियंस, हाई क्वालिटी क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर कीज रहेंगे, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एरिया टू बूस्ट योर स्कोर। Again, expert videos, discussion videos हैं to answer your questions and clear your doubts. Time bound practice है to manage your time effectively, that mirrors the actual exam format. So Nishchay test series is your shortcut to prelim confusions. You can enroll in this test series and take a step further towards your IAS dream. Or you can visit the Apti Plus Academy's website for more information and for enrollment of this test series. Now jumping to the second topic of the day, that is Indian turtles and Gomti rivers. So Gomti's forgotten treasure. इसमें टेंटरगल टर्टल्स के बारे में बात की है। इट इज़ ए विक्ट्री फॉर टर्टल्स
द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि 650 जो एंडेंजर्ड ब्यूटीज हैं, इस तरह के टर्टल्स हैं, दे आर सेव्ड फ्रॉम द पोचर्स। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसीलिए प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर थर्ड के लिए। प्रीलिम्स का कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से जो कवर होते हैं, वो है जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जीएस पेपर थर्ड में इट रिलेट्स टू द कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो लेट्स जंप टू द कॉन्टेक्स्ट। Around 650 freshwater Indian tent turtle rescued from the poachers, and they were released on the orders of the court of the chief judicial magistrate in their natural habitat, that is Gomti river in बख्शी का तालाब रीजन। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, द रेयर स्पीसीज टर्टल, और दूसरा इंपॉर्टेंट है गोमती रिवर। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट द गोमती रिवर। गोमती एक गंगा प्लेन की एलिवेल रिवर है, एंड इट इज ऑल्सो सर्विंग एज ए ट्रिब्यूटरी टू द गंगा रिवर। ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है, गोमट ताला लेक, इसका ओरिजिन है गोमट ताला लेक। और दिस ताला लेक इज ऑल्सो नोन एज फुलहर झील एंड सिचुएटेड नियर मैन कोट इन मधुतांडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाउन है, वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है। यहाँ मैप में देख सकते हैं इसका ड्रेनेज एरिया क्या है। यूपी गवर्नमेंट ने इसको नॉन पेरेनियल रिवर डिक्लेयर कर रखा है और बहुत सारे रीजन से फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है। फाइनली जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा में मर्ज कर जाती है। ये यूपी में कौन कौन से रीजन्स में जाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर फन इन्फॉर्मेशन, आप याद रखें गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, टू बी स्पेसिफिक एट कैथी, वहाँ पे गंगा के साथ मर्ज हो जाती है ट्रिब्यूटरी। टोटल लेंथ 960 किलोमीटर है और इम्पॉर्टेंट है स्पेशली सिटी ऑफ लखनऊ के लिए, ठीक है। लेट्स मूव अबाउट द सम अदर फैक्ट्स। तो ये मैंने एक ट्रिब्यूटरी का नेटवर्क दे रखा है गंगा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे ये देखिए गोमती है। गोमती का थोड़ा और डिटेल में हम देख लेंगे, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओरिजिन की हमने बात कर ली थी, यहाँ पे फुलर लेक है। लेंथ की बात कर ली थी, इट फ्लोज एंटायरली इन यूपी। और कॉन्फ्लुएंस यानी गंगा में ये ट्रिब्यूटरी कहाँ जाके मिलती है, कैथी, गाजीपुर, जो कि वाराणसी के बॉर्डर पे है। ये डिस्ट्रिक्ट कवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ड्रेनेज एरिया भी इस तरह के नहीं पूछते, ट्रिब्यूटरीज कई बार पूछ लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज अराउंड 24 ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक साई, कैथिना, भैंसी, इस तरह की ट्रिब्यूटरीज को आप याद रख पाएँ तो आप ये याद कर लीजिए, कभी कभी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेती है, राइट। तो ये एक बड़ा मैप है अबाउट द गोमती रिवर एंड द गंगा रिवर। थोड़ा और अच्छे मैप से इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंजेस, गंगा रिवर, राइट। तो यहाँ पर आप पॉज लेके इस वीडियो को थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है वैसे गोमती रिवर की। हिंदू बिलीफ के अनुसार दिस रिवर इज ए डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठा, और एकादशी के दिन गोमती में नहाना इट कैन वॉश अवे सिंस, ठीक है। तो ये नॉट मच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, सो आई हैव इंक्लूडेड। और जैसे बाकी सारी रिवर्स के साथ हो रहा है, इसमें पॉल्यूशंस भी बहुत हैं, ठीक है। पॉल्यूशन का मेजर सोर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, स्पेशली फ्रॉम द शुगर फैक्ट्रीज एंड डिस्टिलरीज, ठीक है। रेजिडेंशियल वेस्ट वाटर हैं, सीवेज हैं, तो इस तरह से, राइट। सो लेट्स मूव टू द इंडियन टर्टल, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनका इंडियन टेंट टर्टल का साइंटिफिक नेम है पैंगशुरा टेंटोरिया, राइट, एंड इट इज अ स्पीसी ऑफ टर्टल इन द फैमिली जियोमाइडाइडी। द स्पीसी इज एंडेमिक टू इंडिया एंड बांग्लादेश। Now let's talk about the habitat and significance of this species to the environment. अच्छा, इसके हैबिटेट क्या है, स्टिल वाटर पूल्स हैं, रिवर साइड के जो होते हैं स्टिल वाटर पूल्स हैं, और स्लो रनिंग वाटर है रिवर बैंक्स में, इनका मेन हैबिटेट है। दे आर एक्टिव स्विमर्स और मेनली हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। जो वेजिटेशंस हैं वो जनरली प्रीफर करते हैं, दे मेनली हर्बीवोरस। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दे फाउंड इन रिवर स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान अलॉन्ग विद द इंडिया विद मड और सैंड बॉटम्स। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, सिग्निफिकेंस से पहले इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो हाईलाइटेड है यहाँ पे येलो में। इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्पीसीज इंडियन टेंट टर्टल, राइट। आप और देख लीजिए क्लोजली। सो दिस इज द एरिया। सो सिग्निफिकेंस में थ्रेड से पहले हम एक और देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। जैसे हमने बात की, दे फीड ऑन द वेजिटेशन फाउंड इन द रिवर, और ये टर्टल्स हैं वो नेचुरल क्लीनर्स माने जाते हैं बिकॉज दे सर्वाइव बाय ईटिंग मॉस, एल्गाई एटसेट्रा, एंड दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। इनके लिए कुछ थ्रेट्स भी हैं। इनकी बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस है, आपने जैसे फोटो में देखी है, देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस है इस स्पीसी की। तो इलीगली
ट्रेड किए जाते हैं, ये पेट मार्केट में बड़ी डिमांड है, राइट। सेकंड जो है, समटाइम्स दे आर हंटेड फॉर द कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन के लिए हंट नहीं किए जाते, बट मेनली इलीगल ट्रेड, पेट ट्रेड के लिए ये हंट किए जाते हैं और पकड़े जाते हैं। सेकंड बिगेस्ट थ्रेट इज इलीगल सैंड माइनिंग। इलीगल सैंड माइनिंग हैम्पर्स देयर ब्रीडिंग and there are various other reasons for the habitat loss due to the dam construction, pollution, agricultural conversion of the riparian habitats, तो habitat destruct हो जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है करंटली? इंडिया का एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इट इज नाउ लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट 1972, द शेड्यूल 1 प्रोवाइड्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू दिस स्पीसी। साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में है, जबकि IUCN इंडियन टेंट टर्टल को लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। बहुत सारी स्टेप ली गई हैं, जैसे लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट जनरली कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे एक तो हमने बात कर ली लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जो WCCB है, वो स्टेट और UT के साथ कोऑर्डिनेट करता है, बाकी एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट द पोचिंग एंड अनलॉफुल ट्रेड ऑफ दिस स्पीसी। एक हमने बात कर ली थी इंडिया में, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं जनरल। इस तरह के क्वेश्चंस स्पीसीज से रिलेटेड आते हैं या फिर रिवर की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड आते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि UPSC 2017 प्रीलिम्स में आया था। इट इज अबाउट द रिवर तीस्ता। सो विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, जो न्यूज में थी उस टाइम पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता, देखिए सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। यहाँ पर 2-3 इन्फॉर्मेशन कंबाइन कर दी गई है। आपको तीस्ता रिवर का सोर्स पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र का सोर्स पता होना चाहिए, और कहाँ से फ्लो होती है, किस स्टेट से फ्लो होती है वो पता होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इज अबाउट रिवर रंगीत विच ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, एक ओरिजिन के बारे में, दूसरा ट्रिब्यूटरी के बारे में। तीसरा, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो एक तरह से पूछा गया है कि ये कहाँ पे, इसका एंड पॉइंट कहाँ पे, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप न्यूज़ को लगातार फॉलो करेंगे तो यू कैन इजीली आंसर दो। रिवर तीस्ता के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर वुड बी योर सेकंड। So this is all for today's session. Thank you for joining today's News in Focus session of FT+ Academy. And I hope कि जो आज हमने डिस्कशन किया है वो वैल्यूएबल रहेगा आपके अपकमिंग UPSC स्टेट BCS एग्जाम्स के लिए। Stay tuned for more educational content and topics useful for exams. Keep learning, keep visiting FT+ YouTube channel, and thanks for watching. Signing off.